নমস্কাৰ মই এপলিনা টাইমেটৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক স্বাগতম জনাইছো আৰু লৈ আহিছো আজিৰ দিনটোৰ পুৱাৰ প্ৰথমটো খবৰ ৰাজ্যবাসীৰ বাবে এটা ভাল খবৰ এতিয়াৰে পৰা কোনো লোকে কেঁচা ঘৰত থাকিব নালাগে কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস গৃহ যোজনাৰ জৰিয়তে সকলো লোককে এতিয়া পকী ঘৰ দিবলৈ সাজু হৈছে চৰকাৰ কিন্তু তাৰ বাবে আপুনি কি ধৰণে এই পকী ঘৰ লাভ কৰিব এখন মাত্ৰ ফটো আৰু এই ফটোখনৰ জৰিয়তে 9টা প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে আপুনি লাভ কৰিব পকী ঘৰ জানি লওক এই সকলো প্ৰক্ৰিয়া কি ধৰণে আপুনি এটা পকী ঘৰ লাভ কৰিব চৰকাৰ তৰফৰ পৰা PMAY ঘৰ আপুনি পালেনে নাই প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস গৃহ যোজনাৰ ঘৰ আপুনি যদি এতিয়াও পোৱা নাই তেনেহলে আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে এতিয়াও যদি চৰকাৰী ঘৰ পোৱা নাই আজিয়ে কৰক আবেদন প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস গৃহ যোজনাৰ বাবে আপুনি এতিয়াও যদি আবেদন কৰা নাই তেনেহলে আপুনি পিছপৰি নাথাকিব আবেদন কৰক চৰকাৰী পকী ঘৰ জনসাধাৰণে এতিয়াৰ পৰা অতি সহজে লাভ কৰিব পাৰিব মাত্ৰ এখন ফটো তুলিয়ে লাভ কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ ঘৰ এয়া কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা বৃহৎ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে এতিয়ালৈকে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ ঘৰ লাভ নকৰা সকলৰ বাবে ভাল খবৰ আৰু যিসকলে পূৰ্বতে আবেদন কৰিও এই সুবিধা পোৱা নাছিলে তেওঁলোকৰ বাবে ভাল খবৰ আজিয়ে জানি লওক প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ ঘৰ লাভ কৰিবৰ বাবে 9টাকৈ প্ৰক্ৰিয়া আপুনি যদি ঘৰ পোৱা নাই এখন মাত্ৰ ফটো তুলি লাভ কৰিব চৰকাৰী ঘৰ মাত্ৰ এখন ফটোৰ জৰিয়তে চৰকাৰী ঘৰ লাভ কৰিব পৰাকৈ সুবিধা দিছে মোবাইলৰ এখন ফটো আৰু আধাৰ কাৰ্ড থাকিলে লাভ কৰিব বিনামূলীয়া ঘৰ আধাৰ নম্বৰ জৰিয়তে PM আৱাস যোজনাৰ পৰ্টেলত আবেদন কৰিব লাগিব 15,000 টকা মাহিলী আয় হলেও লাভ কৰিব বিনামূলীয়া ঘৰ অৰ্থাৎ যিসকলে 15,000 টকা পৰ্যন্ত পায় তেওঁলোকেও বিনামূলীয়া ঘৰ লাভ কৰিব দুচকীয়া বাহন থাকিলেও আপুনি লাভ কৰিব বিনামূলীয়া ঘৰ পূৰ্বতে দুচকীয়া বাহন থাকিলে দিয়া নহৈছিল কিন্তু এতিয়াৰ পৰা দুচকীয়া বাহন থাকিলেও লাভ কৰিব পকী ঘৰ 5 একৰ পৰ্যন্ত মাটি থাকিলেও লাভ কৰিব বিনামূলীয়া ঘৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ অধীনত এনেধৰণে চৰকাৰী ঘৰ দিবলৈ সাজু হৈছে পুনৰ বহাগত 3,88,000 লোকে লাভ কৰিব বিনামূলীয়া এই চৰকাৰী ঘৰ আজি নতুনকৈ আবণ্টন দিলে নতুনকৈ 3,88,000 এই বিনামূলীয়া ঘৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা বৃহৎ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে জিঅ' টেগিং কৰি থোৱা প্ৰতিটো দুখীয়া পৰিয়ালে পাব ঘৰ ৰাজ্যবাসীৰ বাবে এটা ভাল খবৰ আপুনিও যদি প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস গৃহ যোজনাৰ বাবে পূৰ্বতে আবেদন কৰিছিল কিন্তু আপুনি সেই প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস গৃহ যোজনাৰ ঘৰ লাভ কৰাৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব লগা হৈছিল কিন্তু এতিয়া আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে কিয়নো প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস গৃহ যোজনাৰ ঘৰ এতিয়া আপুনিও লাভ কৰিব আপোনাৰ ঘৰত দুচকীয়া বাহন থাকিলেও লাভ কৰিব আপোনাৰ 5 একৰ যদি মাটি আছে তেতিয়াও লাভ কৰিব বা আপোনাৰ ঘৰত যদি কোনোবা 15,000 টকা পৰ্যন্ত মাহেকত যদি দৰমহা পায় তেনেহলে তেওঁ লাভ কৰিব কিয়নো প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস গৃহ যোজনাৰ ঘৰ দিবৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এটা বৃহৎ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে যাৰ জৰিয়তে এতিয়া মাত্ৰ আপুনি এখন ফটো তুলিব লাগিব আৰু আধাৰ কাৰ্ডটো আপোনাৰ হাতত থাকিলে আপুনি পকী ঘৰ লাভ কৰিব তেনে সহজ মাত্ৰ 9টা প্ৰক্ৰিয়া প্ৰথম কথা হ'ল আপোনাৰ হাতত থকা মোবাইলটোৰ জৰিয়তে আপুনি মাত্ৰ এখন ফটো তুলিব লাগিব আৰু সেই ফটোখন আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে আপুনি জমা দিব লাগিব সংশ্লিষ্ট বিষয়াক আপুনি দিব লাগিব বা আপুনি অনলাইনতো আবেদন কৰিব পাৰিব সকলো সুবিধা এই 9টা প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে এতিয়া লাভ কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস গৃহ যোজনাৰ ঘৰ দিবলৈ পুনৰ সাজু হৈছে এতিয়া কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ পুনৰ লাখ লাখ লোকে পকী ঘৰ লাভ কৰিব বহাগতে নতুন পকী ঘৰ লাভ কৰিবলৈ এতিয়া পুনৰ সাজু হওক ৰাজ্যবাসী এই সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আহি অসমবাসীৰ বাবে এই বৃহৎ ঘোষণা কৰিছিল আমাৰ হাতত এই মন্তব্য আছে মন্তব্য আগবঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিম आपके पास मोबाइल होना चाहिए आधार नंबर होना चाहिए उस आधार नंबर को लॉगिन कीजिए और अपना फोटो खींच लीजिए अपडेट कर दीजिए वो पूरा का पूरा जो ऐप है उसमें जानकारी का जो कॉलम है वो खुल जाएगा और उसको आप भर दीजिए 15,000 रुपए तक भी हर महीना कमाए तो भी मकान उनको दिए जाएंगे सर्वे में उनका नाम जोड़ा जाएगा एक बात और थी पुराने सर्वे में कि अगर किसी के पास मोटरसाइकिल 2 व्हीलर अगर है तो उसको मकान नहीं दिया जाएगा अब 2 व्हीलर तो हर एक के पास है गरीब भी मजदूरी करने जाता है तो आजकल तो मोटरसाइकिल पर बैठ के ही जाता है तो 2 व्हीलर में तो कई बाहर हो जाएंगे इसलिए हमने फैसला किया है कि 2 व्हीलर जिसके पास होंगे उसको भी मकान दिया जाएगा और तीसरी चीज और छोटे छोटे किसानों ने क्या उनका क्या दोष है 2.5 एकड़ तक सिंचित जमीन वाले और 5 एकड़ तक अनइरिगेटेड असिंचित जमीन वाले जो किसान हैं उनको भी घर दिए जाएंगे
ताकि छोटे छोटे किसानों को भी घर मिल सके। हमारे ग्रामीण विकास मंत्री रणजीत जी बैठे हैं। मकान 20 लाख में से 19 लाख से ज्यादा आपने बना के गरीबों को समर्पित कर दिए, आपका अभिनंदन। और हमने पूछा जब आ रहे थे लाभार्थी हितग्राही मकान बना कि नहीं बना, तो सबने कहा मकान बन गया। आज जिन 50,000 भाइयों ने गृह प्रवेश किया है, बहनों ने, उनको भी बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। लेकिन ग्रामीण विकास मंत्री बनने के बाद मामा भी पहली बार असम में आया है। हेमंत दा ने कहा अभी कि ये मकान तो बन गए 20 लाख, लेकिन जरूरत अभी और भी है। आप बताओ बहनों और भाइयों, हर गरीब का पक्का घर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। तो दादा कह रहे हैं अभी तो आवास प्लस की सूची में से ही कुछ बचे हैं। दादा जो बन गया अब उनकी बात नहीं करूंगा, लेकिन आपने जो बताया और मैंने जानकारी ली, उस जानकारी के हिसाब से अभी 7,76,000 मकान उस सूची में से और बनना है। और इसलिए आज ही 3,88,000 मकान तत्काल हम स्वीकृत कर रहे हैं असम के गरीबों के लिए। मेरे अधिकारी यहां बैठे और ये कह के नहीं करूंगा, दादा भी आपको चिट्ठी भी देने वाला हूं, क्योंकि आपने पहले ही कह दी थी कि आओ तो कुछ लेके आना, तो लेके आया हूं। और 3,88,000 नहीं दादा, 3,88,000 अभी इसी वित्तीय वर्ष में, अगले महीने किस्त जारी कर सकते हैं आप। और उसके बाद अप्रैल के महीने में अगला वित्तीय वर्ष शुरू होते ही 3,88,000 और देके सूची को पूरा कर दिया जाएगा। आवास प्लस की सूची से एक भी लाभार्थी वंचित नहीं रहेगा। हेमंत विश्व शर्मा जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से यह चमत्कार होगा। इतने मकान एक साथ कभी नहीं बने। और इतना और बताता हूं कि इन दोनों में पैसा कितना लगेगा। आज जो मकान हम देंगे, जो मैंने घोषित किया है, उसमें 9,726 करोड़ रुपए की कुल राशि लगेगी, दोनों मिला के आज के। और जो मैंने अनाउंस किया अगले वित्तीय वर्ष के, 16,159 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा गरीबों के मकान बनाने के लिए। और दादा इसमें से 90% केंद्र सरकार का, 10% आपका, थोड़ा हमारा थोड़ा तुम्हारा, गरीबों का घर बन जाएगा, उनकी जिंदगी सफल और सार्थक हो जाएगी। लेकिन दादा यहीं तक नहीं रुके, उन्हें कहा भी तो कई रह गए, सर्वे में नाम छूट गए। तो मेरे बहनों और भाइयों, आप भी ध्यान से सुनना और बाकी को सुना भी देना कि जो मकान बचे हैं, प्रधानमंत्री जी ने तय कर लिया है। सरकार बनते ही तीसरी बार उन्होंने ये तय किया था कि गरीबों के लिए 3 करोड़ घर और बनाए जाएंगे, 1 करोड़ शहर में और 2 करोड़ गांव में। तो जो छूट गए, बताओ भी छूट गए कि नहीं? कई लोग छूटे हैं कि नहीं? कई लोग छूटे हैं। तो अब जो छूटे हैं वो भी नहीं छूटेंगे। अब नया सर्वे शुरू किया जा रहा है, फिर से जो छूट गए हैं उनका नाम जोड़ने के लिए नया सर्वे। और नए सर्वे में भी 3 संशोधन किए। दादा 3 संशोधन किए हमने, रणजीत जी भी सुन रहे हैं। नंबर 1, यहां लखपति दीदी अभियान चल रहा है। पहले पीएम आवास योजना में यह तय कर दिया था कि 10,000 रुपया हर महीने से ज्यादा जिसकी आमदनी होगी उसको मकान की पात्रता नहीं रहेगी। अब 10,000 रुपया तो हमारी लखपति दीदियां ऐसे ही कमा लेती है। अगर इसी सीमा को मान लिया तो ये तो मकान की दौड़ से बाहर हो जाएंगी। और इसलिए तय किया कि 10,000 नहीं, 15,000 रुपए तक भी हर महीना कमाए तो भी मकान उनको दिए जाएंगे। सर्वे में उनका नाम जोड़ा जाएगा। एक बात और थी पुराने सर्वे में कि अगर किसी के पास मोटरसाइकिल 2 व्हीलर अगर है तो उसको मकान नहीं दिया जाएगा। अब 2 व्हीलर तो हर एक के पास है। गरीब भी मजदूरी करने जाता है तो आजकल तो मोटरसाइकिल पर बैठ के ही जाता है, तो 2 व्हीलर में तो कई बाहर हो जाएंगे। और इसलिए हमने फैसला किया है
कि टू व्हीलर जिसके पास होंगे उसको भी मकान दिया जाएगा। और तीसरी चीज, और छोटे छोटे किसानों ने क्या, उनका क्या दोष है? 2.5 एकड़ तक सिंचित जमीन वाले और 5 एकड़ तक अनएरिगेटेड असिंचित जमीन वाले जो किसान हैं उनको भी घर दिए जाएंगे, ताकि छोटे छोटे किसानों को भी घर मिल सके। अब ये 3 शर्तें और हटा के अब हम सर्वे करेंगे। लेकिन दादा सही सही बोलते हैं, कोई चीज छुपाते नहीं है। उन्होंने कहा कि कई बार नीचे जो सर्वे करने टीम जाती है वो ही गड़बड़ कर देती है। अब ये गड़बड़ बिल्कुल निर्मूल होनी चाहिए, और उसके लिए 2 काम हम कर रहे हैं। एक तो सर्वे करता है अमला, मतलब रेवेन्यू का हो, पंचायत ग्रामीण विकास का हो, लेकिन अब हितग्राही जिसके पास घर नहीं है, कच्चा घर है, वो खुद भी सर्वे कर सकता है। मेरी बात सुनी कि नहीं आपने? खुद भी सर्वे कर सकता है। नहीं, कई के नाम छोड़ देते हैं। कई तरह के परिवर्तन हमने किए थे, जैसे टीन की पहले छत होती थी तो कहते थे इसको मकान नहीं मिलेगा तो पक्का है, वो भी अब कच्चे की श्रेणी में है, उसमें भी कई मकान मिले। लेकिन मैं सर्वे की बात कर रहा था। आपके पास मोबाइल होना चाहिए, आधार नंबर होना चाहिए।